Let's all of us read it together. Psalm 98. Sing a new song to the Lord, for he has done marvelous deeds. His right hand and holy arm have won the victory. The Lord has made his victory known, has revealed his triumph in the sight of the nations. He has remembered his mercy and faithfulness toward the house of Israel. All the ends of the earth has seen the victory of our God. Shout with joy to the Lord, all the earth. Break into song, sing praise. Sing praise to the Lord with the lyre and the melodious song, with trumpets and the sound of the horn. Shout with joy to the King, the Lord. Let the sea and what fills it resound, the world and then those who dwell there. Let the rivers clap their hands, the mountains shout with them for joy before the Lord who comes to govern the earth, to govern the world with justice and the people with fairness. Amen. Amen. यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अचानक कर्म के लिए किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरही और नरसिंगे कुमकुम पर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र ओश्र उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करे। नदियां तालियां बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करे। हे यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमीन। Amen. So let's worship the Lord. Come worship Him. Come, let us adore. Oh, come, let us adore Him
singing exaltation, sing all its citizens forever. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ alone. Yeah. Glory bring on this happy morning, Jesus to me all glory. Word of the Father, now in flesh appeared. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Right. One more time. Oh, come let us sing. Oh, come, let's welcome Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Cry one more time. Praise the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ alone. Let's give Him a big hand. Yes, Lord. We welcome You, Lord Jesus, in this place. Can we put our hands together? It's up, it's up. Once again. Let's give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Praise Him, our Lord is. His love endures forever. Sing praise, sing praise. One more time. Give thanks to the Lord. Thanks to the Lord, God and King. His love endures forever. For He is good, His love of His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is faithful. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is faithful. Forever. With a mighty hand, and swift His time. His love endures forever. The motherland is burning on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful.
the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, only you, Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. One more time. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. At this moment, we will just thank God for His presence in our lives. All of us know God has impacted our lives in some form, some manner. In the past, maybe today, in the future. That is His promise. He will never leave us nor forsake us. This time, normally we pray for needs, some people's need, which come across to us. But today, right now, we are going to thank God for what He's doing in our lives. Let's make it very personal between me and my Father. Not me and my God. Me and my Father who is in heaven. Let's make it very personal. Let's close your eyes, bow down your heads. If there's anything that you want to put it across to the Lord, any need that you have, this is a good time to do that. This is a good time to do that. We just keep a moment of silence. इस समय आप लोगों को दिया गया है ताकि आप लोग परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में बहुत कुछ किया है, पहले किया है, आज कर रहा है और आगे भी करेगा, ये उसका वादा है। हमें आज इस समय उसके पास आकर उसको सिर्फ धन्यवाद देना है, कहना है तू मेरा पिता है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है, हम अकेले नहीं, we are not alone because you are with us. Thank you Jesus, 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 thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. We will have a Hindi song. हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद और सब लोगों को भी धन्यवाद कि सब लोग आए। हम गाना गाएंगे हिंदी और प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि धन्यवाद के अलावा हम उसको कुछ नहीं दे सकते। उसने सब कुछ हमें दिया है और सब कुछ उसी का है, सिर्फ हमें आत्मा और सच्चाई से उसको धन्यवाद देना है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान मिले पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान मिले पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरा जीवन साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरा जीवन साथी, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कभी नहीं मुझको, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कभी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करने से वो सब कुछ देता है हमें, कोई घटी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, Amen. जब प्रभु हमारे साथ होगा। Yes, we will lack आमीन। nothing when God is with us. Amen. Just be seated, please. Meet each other, greet each other. If you can, just turn around, say hello, hi to your neighbors. आप रोज मुझे याद करते हो, आप प्रभु है। हाँ मैं प्रभु हूँ। हेलो संजू, क्या है? कोई भी गेट पे नहीं है, किससे बात कर रहे हो? चलो जल्दी, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखी, और आज मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रही। चलो चलो, टाइम हो रहा है।
दिया है, जल्दी लंच का डब्बा देना, मुझे ऑफिस के लिए जाने के लिए टाइम हो रहा है। सॉरी, जब भी आपको टाइम मिलेगा तब देना। सॉरी बोल दिया, बोलते तो गुस्सा हो जाते, पता नहीं सॉरी कैसे बोलती है। चलिए लो डब्बा घुमाओ। थैंक यू, और अपना ख्याल रखना। हाँ, ख्याल भी रखना बोल दिया है तो बहुत चार आ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर आपने जो बोला था काम के लिए वो फाइल है, और ये कुछ रकम ये मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठा की है, तो प्लीज़ आप मेरा काम कर देना। और ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं आपका ऐसा ही काम कर दूँगा। और कल तक सर आप बोल रहे थे रिश्वत के सिवा काम नहीं होगा, फिर मुझे आज ही पता चला है कि मुझे ये काम का सैलरी मिलता है, तो उसमें मेरा हो जाता है, तो मैं आपका काम ऐसे ही कर दूँगा। आप ये रखो। ओके सर, थैंक यू सर। रिया खाना देना। खाने के लिए कुछ बोलोगे नहीं? नहीं, खाना बहुत अच्छा बना है, और तुम हमेशा अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन मैं ही कुछ कमियां निकालते रहता हूँ, और बहुत ही अच्छा खाना है। और ज़्यादा भूख लगे और 2 रोटी लेके आना। वो ज्यादा खाना छोड़ के चले जाने वाला इंसान 2 रोटी ज्यादा मांग रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। आज तुम्हें इसकी जरूरत नहीं लगेगी, आज तुम्हें अच्छी अरे संजू उठो, कितनी सो रहे हो? सुबह ऑफिस जाने का टाइम नहीं हुआ क्या? उठो जल्दी। इतनी नींद की गोली क्यों खाते हो? कितनी बार बोले हैं नींद की गोली खाया मत करो। नींद की गोली खाते हो, जल्दी उठते नहीं हो, और फिर ऑफिस जाने के टाइम में मेरे को गुस्सा करते हो। उठो जल्दी। इतनी नींद की गोली क्यों खाते हो? वाकई में आज बहुत गहरी नींद में सो गया था, और आज नींद की गोली भी नहीं खाई थी मैंने। फिर प्रभु प्रभु के वजह से मैं जल्दी से गहरी नींद सोई हूँ, और प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी। मैं हमेशा सबकी गलतियाँ निकालता था और सबको भला बुला बोलता था, इसलिए
आज मैं प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। रामायण ऐसे था कि हमेशा हम प्रभु हमारे साथ में होता है, अनदेखा करते हैं और फिर प्रभु हमें कभी कभी अनदेखा हम करते हैं हमेशा, फिर प्रभु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अभी आज मैं इसका बराबर करता हूँ। इसीलिए हमारी आंखें खोलने के लिए आत्मिक तौर पे हमारे साथ में रहता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है, मगर हमारी आंखें खोलने के लिए हमें आत्मिक आवाज बार बार बताता है कि सुनो तुम गलत कर रहे हो। जब हम सुनते हैं तभी हमारे अंदर बदलाव आता है। तो हमारे अंदर बदलाव लाने के लिए हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और हमें अपने आप को बदलना है। हम अपने आप को बदलने के बाद प्रभु को हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने हमें बदला है, अच्छी राह पे हमें चलाया है, तो हमेशा उसका धन्यवाद देते रहना है हमें। So did you enjoy it? Everyone? Yes. Come on, let's come together. And that was. Thank you so much. Preparation took time. Preparation took little time. I think the end was good. A lesson to learn. Okay, so let's move ahead. Thank you so much. Okay, short skit is over. Now, very quickly in terms of the upcoming events for the. Take it over. Jogan
लिया, बस गोदी में जाने का मुझको मैंने जान लिया, जान लिया। मैंने यीशु को सब कुछ अपना मान लिया, बस वो ही बचाएगा मुझको, मैंने जान लिया, जान लिया। मुझको किसी बात का मेरे साथ में है, इसलिए खड़ा जा। लगी है मुझको किसी बात का मेरे साथ में है, इस दुनिया का राजा उसके कहने पे जल्दी आजा, हो गई पागलिया। इसके घेर के जल्दी आजा, ये हो गई पागलिया। जोगनी 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 मैं यीशु की जोगनिया, जोगनी 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 मैं यीशु की जोगनिया, मैं उसकी दुल्हनिया, मैं हो गई पागलिया, मैं उसकी दुल्हनिया, मैं हो गई पागलिया, मैं उसकी दुल्हनिया। I was about to come to dance with her, with you. It finished. Finished. Thank you so much. Thank you so much. God bless you in that. I hope all of you enjoyed. Everyone? Praise God, praise God. Now, before we go to the Word of God, Sister Shilpa, we can ask you to come and just pray for the offering. You know, Sister Shilpa always prays for the offering. And today, we'll be bidding a farewell also. I don't know when is the next time when she'll be here to pray for the offering again. Okay? God bless you. Hindi, you do it in Hindi. That's okay. There you go. Let's close our eyes. So just Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for this time, Lord Father. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए राजा. Father, we especially pray for this day, Lord Father, as we are celebrating Thanksgiving, Lord Father. Yes, पिता परमेश्वर हम इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं. आज हम धन्यवाद देने आए तुझे, क्योंकि धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते. Yes, Lord. We are visitors here. Nothing is ours, Lord. All blessings, our family, our job, house, everything is yours, Lord Father. Thank you, Lord. You are continuously providing us and protecting us, Lord Father. Thank you for this offering, Lord. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते इस ऑफरिंग के लिए, लॉर्ड. जो भी दान दशमांश दिया है पिता परमेश्वर तेरा ही है, और प्रभु जी इसके आपके लहू से कवर करती हूँ राजा. प्रभु जी यहाँ जो भी आए हैं सबको तेरे हाथों में देते हो. उनको आशीष देना और इतना आशीष देना कि वो नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा दे तेरे राज में. धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर मेरे परिवार के लिए, इस फैमिली के लिए राजा. Father, I especially pray for Sister Joy, Lord Father. Thank you, Lord, you chosen her, Lord Father. I just give thanks for her life, Lord Father. Thank you, Lord, the word you spoke in his heart, Lord, in her heart, Lord Father. Give your strength, O Master. पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर जॉय के लिए, जो तेरा वचन दे बांटने आई है राजा. उसे हिम्मत और शक्ति देना, क्योंकि यहाँ खड़े रह के बात करना, इधर खड़े रहने के लिए मेरे हाथ थर हो रहे हैं. तो मैं जानती हूँ कि इधर प्रीचिंग करना इज नॉट इजी, लेकिन परमेश्वर हमें शक्ति सामर्थ्य तू देता है. all strength is coming from you, Lord. So give your strength to Lord Father. Yes, Lord. That she can boldly speak your word, Lord Father. पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ सिस्टर के लिए कि वो एकदम पावरफुली तेरा वचन बांटे, और जो लोग हैं हम वचन सुनेंगे, हमारे बीच वचन हृदय में रहे राजा. मैं इस समय को सिस्टर जॉय को तेरे हाथ में देती हूँ, और उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं आए राजा.
ये समय और सिस्टर जॉय को तेरे हाथ में देती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Thank you, sister. God bless you on that. Okay, as I always say before the word of God, are you ready to receive the word of God? सब तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? Everyone? Praise God. So I think the children may go for the children's ministry. You may go to the no? You, the children. Okay, not you. Rest of the children can go. Your teacher is waiting there for you, I think. Shana is there? Okay. Alright, so let's join our hands together as we welcome Sister Joy who comes to bring the word of God. She may not need a mic, but I'll use a mic. So I'll try to translate it, okay, to the best of my ability. So she will speak in English and I will speak in Hindi. Everyone ready? Shalom everyone, good evening and welcome to our church. सबको स्वागत है हमारी कलीसिया में। Okay. So today we are entering into the season of Advent. आज हम जो पहला एडवेंट है, जो क्रिसमस से पहले 4 हफ्ते आते हैं, उसे एडवेंट बोलते हैं। उसका पहला हफ्ता है, पहला संडे है। And this is the week of hope. ये आज का संडे उम्मीद के ऊपर आधारित है। The reason I chose this image ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने चुना है खास तौर पे, उसका वजह है because light and darkness are not opposites. क्योंकि जो अंधेरा, उजाला और अंधेरा ऑपोजिट are opposites और एक दूसरे के विपरीत नहीं है। In fact, darkness is the absence of light. इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो अंधकार है उसमें उजाला नहीं है, इसलिए वहाँ अंधकार है। And where light is, there cannot be darkness. और जहाँ पे उजाला होता है वहाँ पे अंधेरा नहीं हो सकता। Therefore, with just one candle lit, और इस तरीके से एक ही जग मोमबत्ती अगर आप चलाते हैं, this whole place will be bright. और पूरी जगह को उजालित कर देती है। That's what we're seeing. और ये चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं। And that is what is hope. और यही उम्मीद का मतलब होता है। For Advent, why it's important is because we're leading to Christmas. और ये एडवेंट के समय में क्यों खास तौर पे उम्मीद से शुरू होती है, क्योंकि ये एक हम आगे बढ़ रहे हैं क्रिसमस की तरफ। And this week is actually called the prophetic candle. It's called the prophecy candle. इसको प्रोफेसी कैंडल बोलते हैं। हिंदी में प्रोफेसी मतलब नहीं हुआ, हिंदी में नहीं मालूम मुझे क्या है। प्रोफेसी कैंडल बोलते हैं। जैसे Isaiah, जैसे प्रोफेसाइज किया ना आइज़ाया ने, वहाँ पे भविष्यवाणी जो की गई है, भविष्यवाणी की कैंडल मानते हैं इसको। many of the prophets spoke of the coming of the king. बहुत से मसीह लोगों ने, पुराने जमाने के लोगों ने ये एक राजा आएगा उसके बारे में बोला है पुराने नियम में। People were all living in darkness and misery. और उस समय के लोग जो थे अंधकार में थे और बहुत ही बुरी हालत में थे वो। In fact, Isaiah is the one of the prophets that spoke most about the coming of the king. देखा जाए तो आइज़ाया जो था, आइज़ाया ने सबसे ज्यादा बोला है जो राजा आने वाला है उसके बारे में। And he spoke of a light. He always spoke of a light. और वो हमेशा ये बोलता था कि एक रोशनी आने वाली है। So in this verse he talks about the people walking in darkness have seen a great light. On these living in the land of deep darkness, a light has dawned. आइज़ाया 9:2 का किसी पर वचन है, तैयार है? आइज़ाया 9:2 में लिखा है, जो लोग अंधकार में चल रहे हैं उन्होंने एक बहुत जो रोशनी देखी है, एक उज्जवल रोशनी देखी है, और वो जो कि अंधकार में है वहाँ पे वो आएगी, रोशनी आएगी, वो जलत करेगी उस पूरे अंधकार को। Who is that light? वो कौन सा वो रोशनी है ये? यीशु, जीसस। Can I ask Sister Renu? Isaiah 9:67. And someone from the Hindi church, Isaiah 9:67. आइज़ाया 9 6 से 7 6 और 7 अभी रुक के पहले हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे। Yeah. It's important to realize why people needed light. ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि लोगों को रोशनी की क्या जरूरत थी। Because darkness doesn't mean just dark, but darkness in their lives.
अंधकार का मतलब ये नहीं कि अंधकार चारों तरफ अंधकार, अंधकार उनके अंदर जो था उसके बारे में बात हो रही है। They were suffering, they were having pain, they were in poverty, the Romans were ruling them. वो हर तरह की रोमन्स उनको राज्य करते थे, उनके उन पे यात्राएं डालते थे और हर तरह के दुख तकलीफें में वो घिरे हुए थे वो। For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulders. And he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace, and the greatness of his government and peace there will be no end. Amen. Sister Ranjana. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय के से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। No, just give us 2 minutes. He's uncomfortable. Is it okay now? What is that? Like what twisted? Totally twisted. Is okay? You okay now? Okay, it's good. Fine. Leave it. Lock the wheelchair. Lock the wheelchair. Okay, so shall we start then? Continue? You okay? Good. Praise God. So what we heard is they spoke of a mighty one who is coming. तो हमने यहाँ पे क्या सुना कि उस समय वो लोग उन लोगों ने सुना कि एक बहुत ही बड़ा राजा आने वाला है। And what was the result of it? और उसका रिजल्ट क्या होने वाला था? Peace. शांति। Peace. शांति। What we want when we hope for something हमें क्या चाहिए होता है उस समय जब हम किसी चीज की उम्मीद रखते हैं? is शांति। truly for peace in our hearts. ताकि वो शांति हमारे दिल में आए। A hope is not actually wanting things, हो उम्मीद का मतलब ये नहीं कि हम कुछ चीज चाह रहे हैं, कुछ हमें मिले। but a hope is understanding that truth is only in Yeshua and His peace in our lives. तो सच्चाई ये नहीं है कि sorry, can you come again? Hope is not wanting something or having something happen, हाँ, उम्मीद ये नहीं है कि हम कोई चीज को चाह रहे हैं कि वो चीज हमारे साथ कोई चीज हो, बल्कि but because of knowing the truth in Yeshua, we have peace. but by knowing लेकिन ये जानते हुए कि परमेश्वर सच्चा है, वो उसमें हमें अंदर जो है शांति मिलती है। I want to ask a simple question. एक साधारण छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हैं। How many of us here have felt hopeless before? यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको कभी ऐसा हुआ कि उम्मीद नहीं मिली, नाउम्मीद ही मिली? सब लोग। We all know what happened in our lives. हम सबको मालूम है हमारी जिंदगी में क्या हुआ। I asked Pastor for permission today to allow my son to share a short testimony. Pastor will summarize because I didn't realize, but it's about a few minutes. It's about a son's hope, my son's hope. So it's all in English, but Pastor will try and summarize later. अब इस समय हम एक वीडियो दिखाएंगे। वीडियो है इनके बेटे ने एक टेस्टिमनी दी है और वो टेस्टिमनी किस पे है? उम्मीद पे, एक बेटे की उम्मीद पे है कि किस तरह वो उम्मीद को पकड़ कर उसने रखा हुआ है। You like to summarize? No, इसको समराइज करना बहुत मुश्किल है। ये किसी की जिंदगी की कहानी है, अपनी कहानी है, और ये मैं हिंदी चर्च में एक मैसेज के तौर पे आपके पास लेके आऊँगा।
और फिर से हम इस वॉइस को सुनेंगे, रुक रुक के सुनेंगे, जैसे हम करते हैं, रुक रुक के सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? Thank you for being here. Thank you. God Have a bless blessed you. visit. God bless you. God bless you. So remember, So इस चीज का ध्यान रखिए, याद कीजिए हमेशा, hopelessness is but for a moment. जो नाउमीदी के जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए होने चाहिए। Like you heard, he felt he was hopeless. जैसे आपने सुना इस कहानी में जो सूरज ने बोला कि कुछ समय के लिए उसे ऐसा लगा कि वो नाउमीदी, हर तरफ नाउमीदी है, Because he kept looking within himself. क्योंकि उसने अपने अंदर देखना था वो। And that is what we do. When we feel hopeless, we are looking at our surroundings and we're looking at ourselves. और जब ऐसा होता है तो हम या तो अपने अंदर देखते हैं या हमारे आसपास क्या हो रहा है ये देखते हैं, हर जगह नाउमीदी नजर आती है। But we forget to look to heaven. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें ऊपर देखना है, आकाश की तरफ, आसमान की तरफ। Today it's about giving thanks. आज का दिन जो है हम किस लिए है? ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Why are we giving thanks? हम क्यों दे रहे हैं धन्यवाद? किस बात के लिए? Please tell me, why are we giving thanks? आप क्यों धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर का? For His blessings in our life. परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, और कोई लोग? Why are we giving thanks? परमेश्वर ने हमें उस गंदगी से निकाला और अपने राज्य में वो बढ़ा रहा है हमेशा इसी। हमें the Lord has taken us out from the dirt that we were in, filth that we were in. Answer our prayers. Unconditional love, जो प्यार हमें देता है, अनंत काल प्यार है, कोई कंडीशन नहीं है उसमें। परमेश्वर हमें कभी हारने नहीं देता। वो the Lord never lets us lose. So Shilpa, you said something? Yeah, answer our prayers. He answers our, वो हमारी प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब देता है। So when I asked Suraj to speak, he asked me, what shall I talk about? God has done so many things in my life. जब उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि ये तो क्या तुम गवाही दोगे, तो टेस्टिमनी दोगे, तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी जिंदगी में क्या किया, तो उनका उल्टा क्वेश्चन था कि मैं किस किस चीजों के लिए गवाही दूं कि खुदा ने इतना कुछ किया मेरी जिंदगी में। But as the subject was hope, लेकिन जैसे कि जो सब्जेक्ट है आज का वो है उम्मीद पे, he was so honest to tell me, Mom, और वो इतना उदार का मतलब अपने अंदर इतना हम्बलनेस लेके आया वो कि मैं सच्चाई पे कि मॉम, truly this is the one time, this testimony is when I really knew God is my hope. और ये जो गवाही अभी आपने सुनी उस समय उनको लगा कि ये वो समय है जब परमेश्वर उनकी उम्मीद बन के आया। Many times we still say, thank you God, you have helped us, you have brought us through. कई बार ऐसा होता है जब हम परमेश्वर से बोलते हैं कि तो धन्यवाद देंगे तो हमें अड़चन से निकाल के लेके आया है, हमें बुराई से दूर किया है। We're thanking God for the result. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं किस चीज के लिए? क्योंकि उसने कर दिया है, उस रिजल्ट के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। But let us not forget, even if He does nothing, it is still worthy of thanks. लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए अगर हम कुछ भी नहीं होता हमारी जिंदगी में, फिर भी हमें उसका धन्यवाद देना है क्योंकि वो इस योग्य है। Because He is our hope. क्योंकि वो हमारी उम्मीद है। He is our protection. कि वो हमें सुरक्षित रखता है। He is our strength. वो हमारी सामर्थ्य ताकत है। He is our grace. वो हमारी ग्रेस है। And He is our peace. वो हमारी शांति है। So as I shared earlier, जैसे उन्होंने पहले बताया, today we talk about the prophecy candle. आज जैसे उन्होंने बताया कि भविष्यवाणी वाली जो मोमबत्ती है उसके बारे में बात हो रही है। Because that prophecy is about the coming of the King, the coming of the Messiah. क्योंकि वो भविष्यवाणी किस चीज के लिए भविष्यवाणी है? जो राजा आने वाला है उसके बारे में। So who is the person most associated with the coming of the King? तो ऐसा कौन सा इंसान है जो कि जो आने वाला राजा है उसके सबसे क्लोज है, उससे लिंक करता है? Who? कौन है? God the Father? Person, human person. Human person. इंसान, एक इंसान की बात पूछ रहा है। Human person is most associated with the coming of the hope.
कौन है ऐसा इंसान जो है जो कि आने वाली उम्मीद के ऊपर निर्भर से लिंक्ड है, सबसे ज्यादा क्लोज है? Us. Mary. Mary. Mother Mary. Mother Mary. यीशु की माँ. Sorry, Mary, mother of Yeshua. यीशु की माँ. Why? क्यों? Because she was willing to bring the hope to life. क्योंकि वो राजी थी उस उम्मीद को इस दुनिया में लाने के लिए. So I want to share a little bit about this wonderful woman. यह एक किसी के बारे में, किसी औरत के बारे में आपसे बताना चाहती हैं. So we know there are 4 letters in hope, correct? 4 लेटर्स हैं होप में. हिंदी में तो हिंदी में उम्मीद में पता कितने होते हैं, बट 4 अक्षर होते हैं होप इंग्लिश में. HOPE. The first one is H. These 4. I always knew there were 4 letters. I mean that I never doubted. आप सबको मालूम था कि इसमें 4 शब्द होते हैं. इस शब्द जो है होप में. But as Sister Shilpa said and Pastor says, जिस तरह से सिस्टर शिल्पा ने कुछ बोला और जैसे मैं बोलता हूँ, when we come through the pulpit, जब हम यहाँ पे आते हैं, it is not we who speak. तो वो हम नहीं है जो बोल रहे हैं. It is the Lord who speaks through us. वो परमेश्वर है जो हमें इस्तेमाल करता है और अपने शब्द हमें हमारे थ्रू निकलवाता है. So these 4 words are given by Him. तो ये जो 4 शब्द परमेश्वर की तरफ से आए हुए हैं आपके लिए. So the first one is H for hear. पहला शब्द क्या है? सुनिए. H होप का. HOPE होप. H. So we all know the story of Mary. The angel Gabriel came to her. और हम सब से जानते हो कहानी की जो मरियम के पास जो दूत आया, जो गैब्रियल दूत आया और उनके पास कुछ कहने के लिए. She could have chosen to walk away. और उन्होंने जब सुना उसके बाद उनके पास था कि वो कह सकती थी कि वो जा सकती थी कि नहीं, मुझे कुछ मतलब नहीं इससे. You see such a large angel in front of you. Fear could have taken and walked away. अगर हमारे सामने कोई दूत आया, उनके सामने दूत आया, पहली बार दूत को देखा तो डर के मारे वो जा सकती थी वहां से. So if we want hope in our lives, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर उम्मीद आए, first thing we must learn is like how honestly the skit was also planned for this. तो जो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर उम्मीद है, आज जो स्किट हुआ है, जो आपने स्किट दिया था, वो भी सब प्लान, इसी जो प्लान खुदा का प्लान है. They talked about hearing God. क्योंकि उसमें भी उन्होंने यही बोला कि परमेश्वर की आवाज सुनने की बात है. God is with us all the time. परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है, but we don't hear Him. लेकिन हम उसकी बात सुनते नहीं हैं. So the first thing to reach hope in our lives and to understand hope is to hear. सबसे पहली चीज जो हमारे पास होनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि उम्मीद हमारे अंदर हो, हमारे दिल में हो, तो हमें सुनने की काबिलियत रखनी चाहिए. So Mary heard angel Gabriel. तो मरियम ने जो दूत आया था उसकी बात पूरी सुनी. She did question. उसने पूछा, how can I be the one who carries the hope? मुझे क्यों चुना गया है कि मैं परमेश्वर को जन्म दूंगी. There is nothing wrong when you hear to talk to God. इसमें कोई गलत नहीं है अगर आप सुनते हैं और आपसे परमेश्वर से बात करते हैं उसके बाद. God is our Father. क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है. He is our friend. वो हमारा दोस्त है. He is a gentleman. एक बहुत ही अच्छा सज्जन पुरुष है, इंसान है. He will never force us to do anything we don't want to. वो हमें कभी भी ये नहीं चाहेगा, हमें फोर्स नहीं करेगा, नहीं तुम्हें ये करना है. वो हमारी मर्जी के हिसाब से वो काम से कार्य करवाएगा. So here, discuss. तो आप सुनिए और बात कीजिए. What do you need to do when you hear? और आपने सुन लिया है, अब आपको क्या करना है? You have to make a choice. अब आपको यहाँ पे आपको एक चुनाव करना है. Just as, what was the gentleman's name? Sanju. Sanju. Yeah, just now. Yeah, just as Sanju saw God. जैसे ही संजू ने नाटक में देखा, जैसे ही संजू ने परमेश्वर यीशु मसीह को देखा, He heard God. उसने परमेश्वर को सुना. But he could chose not to obey God. और वो चाहता तो कह सकता था मैं परमेश्वर को नहीं सुनना चाहता, नहीं करना चाहता कुछ भी. But did he obey God? लेकिन आप क्या लगता है उसने बात मानी परमेश्वर की? And look at the change that happened in his life. और देखा आपने किस तरह के उसके अंदर बदलाव आया. So look at Mary. अब मरियम को देखते हैं. She was a young girl. एक जवान 13-14 साल की लड़की. Engaged to someone. और वहाँ पे उसकी एंगेजमेंट भी हो गई है.
And in that time, if you were pregnant without a husband, और उस समय अगर आपको देखा जाए कि अगर आप गर्भवती हैं और आपका पति नहीं है तो उन दिनों में they will stone you. तो वो आपको पत्थर से मार के खत्म कर सकते थे। Do you think it was easy for her to obey? आपको क्या लगता है कि आसान रहा होगा मरियम के लिए दूध की बात मानना? But she obeyed. लेकिन उसने सुनी और बात कही पूरी की। Because she didn't trust, she wasn't looking at herself. लेकिन क्योंकि वो अपने अंदर नहीं देख रही थी, अपने को भरोसा नहीं कर रही थी। Nor was she looking in the surrounding. ना ही वो आपस के लोगों के चारों तरफ देख रही थी। She was looking at heaven. लेकिन वो देख रही थी किधर? स्वर्ग की तरफ। He who has told me, he will bless me. जिसने मुझे ये बोला है वो मुझे आशीषित करेगा। So remember, if we truly want hope in our lives, तो याद रखिएगा अगर आप वाकई में चाहते हैं कि उम्मीद हमारी जिंदगी में हो, we hear, आप सुने, we must choose to obey. और हमें उस पर अमल करना होना चाहिए। What do we do after we obey? उसके बाद जब आपने बात मान ली है, उसके बाद क्या करना चाहिए? Go to a mountain top and sit for something to happen? क्या आप जाके माउंटेन के ऊपर चढ़ जाएं, ऊपर वहाँ वेट करने के लिए कोई आपको कुछ होना चाहिए? No. नहीं। Our hearts must be open. Our hearts must be ready. हमारा जो हृदय है वो खुला होना चाहिए और हमारा दिल तैयार होना चाहिए। There's a story of two farmers. एक कहानी है दो फार्मर्स की, दो खेती बाड़ी करने वालों की। They prayed for rain. उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की बारिश हो। One stayed in the house and just kept praying. और एक था जो कि घर में रह के प्रार्थना कर रहा था। The other one went to the field and raked his field, put the seeds ready. और दूसरा जो था जो गया वो अपने खेत में गया और वहाँ पे उसने खेती करना शुरू कर दिया, वहाँ बीज डालने शुरू कर दिए उम्मीद से कि बारिश होगी। So when the rain came, तो जो बारिश हुई, which farmer was the one who gained? अब किसको लगता है कि किस जो खेती करने वाले किसको फायदा हुआ होगा? बीज जिसने बोए उसने उसका। Exactly. So if you hear, अगर आप सुनते हैं you obey, और उस पर अमल करते but you हैं, sit and do nothing लेकिन आप बैठ के उस पर कुछ नहीं and करते हैं, expect literally things to drop on you, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आप जो आप आराम से बैठे हैं सब कुछ अपने आप हो जाएगा, that's not how God works. इस तरह नहीं होने वाला। Even Mary took the strength, went and spoke to Joseph. यहाँ पे अगर देखिए मरियम की बात कर रहे हैं, मरियम ने जब ये बात दूध से सुनी, उसने अमल करने का निश्चय किया, उसके बाद उसने क्या किया? वो गई जोसेफ के पास बात करने के लिए, Because she had a responsibility to the one she was engaged to. क्योंकि वो जिम्मेदारी थी उसकी, ये बताना जरूरी था उसको, जिसके साथ उसका निकाह उसका शादी होने वाली थी, उसको बताना जरूरी था उसे। Of course she was afraid. बिल्कुल डरी हुई थी वो। And even Joseph was shocked. और तो जोसेफ की तो हालत बुरी हो गई थी, उससे डर गया था, चौंक गया था वो। Right? But he was going to give up on her. और यहाँ तक कि इतना घबरा गया था कि वो छोड़ने वाला था उसे। But like Suraj said, sometimes we question God. Have you brought us here to leave us here? जिस तरह हमने देखा, सूरज ने बोला कि हम उससे प्रश्न करते हैं परमेश्वर से कि तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो, हमें छोड़ने के लिए, क्या करने के लिए? So God sent someone to speak to Joseph. तो वहाँ पे उस परमेश्वर ने किसी को भेजा जोसेफ से बात करने के लिए। Remember, he who has started the good work in you will bring it to completion. ये ध्यान रहे कि जिसने भी आपके परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कार्य करना शुरू किया है तो वो उसे खत्म तक लेके आएगा। But you must always be ready and prepared. लेकिन आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। And most importantly, और खास तौर पे उम्मीद पे कायम रहिए कि हाँ मुझे मिलेगा। hold on to him. पकड़ के रखिए उसे। You know the woman who went to touch the garment of the Lord? या आपको याद है जब बाइबल में लिखा है वो उस औरत के बारे में जो कि परमेश्वर का जो गारमेंट कपड़े पहने तो उसको छू लिया था उसने। She was bleeding for how many years? वो कितने सालों से उसे खून की बीमारी थी। She said, I don't need to see him, I just need to touch his hem. उसने बोला कि मुझे परमेश्वर को देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसको छूना चाहती हूँ, उसके कपड़े को छूना चाहती हूँ। She knew he was her hope. उसे मालूम था कि ये मेरा उम्मीद, यीशु में मेरी उम्मीद है। And I just expect by touching, that's all I need to do. और मुझे सिर्फ उसे छूना है और कुछ नहीं। Remember, if you've heard God, ध्यान रहे, अगर आपने सुना है परमेश्वर की आवाज if को, you've obeyed him, अगर आपने उसके जो उसने बोला if अमल you've किया gone है, out and prepared the field of your heart, अगर आपने तैयारी की है,
then expect that mighty rain. तो उम्मीद कीजिए कि वो चीज जो आपने मांगी वो होगी, वहां पे बारिश होगी। Mary and Joseph went. और मेरी जोसेफ गए वहां। They knew उनको मालूम था the king was coming. कि वो राजाओं का राजा आने वाला It है। didn't matter he was born in a stable, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे वो पैदा हुआ, but the king was coming. लेकिन सच्चाई ये है कि राजा आने वाला है। So please remember, expect mighty and great things. तो वो उम्मीद पर रहिए कि हाँ बड़ी से बड़ी चीजों पे आप परमेश्वर से मांग सकते हैं और वो आपको दे सकता है। On that day that Suraj spoke about, April 13th, 2018, जो सूरज ने अभी जो बोला था कि उन्होंने एक तारीख बोली थी अप्रैल 13, he was so broken. बिल्कुल टूटा हुआ था वो, उसने बिल्कुल ही टूटा हुआ था। The reason he was broken was because until that point, at least there was somebody else staying in the home to help him. वो इसलिए टूटा हुआ था कि उस समय तक आखिर कोई ना कोई घर में था जो कि उसके साथ मदद करता था, लेकिन अब वो अकेला था। He was alone and I had to go back to Hong Kong. और वो बिल्कुल अकेला था कि हमारी बहन को वहाँ पे सिंगापुर छोड़ के हांगकांग आना था। And I had not even money to pay the last mortgage. वहाँ पे जो घर का जो मॉर्गेज जाना था, जो इंस्टॉलमेंट जानी थी, वो देने के लिए पैसे नहीं थे। And he got so angry. और वो इतना गुस्सा हुआ। But you know what I told him? और इन्होंने क्या बोला उससे? God is good. कि परमेश्वर अच्छा है। God is great. परमेश्वर बहुत अच्छा है। That is why I always remind him. और No इसीलिए matter how deep down we are, He is our hope. ये हमेशा भी याद रखते, चाहे हम कहीं पर भी हो, कितनी बुरी हालत में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर महान है, शक्तिमान है, अच्छा है। I heard God. That's why I went to Hong Kong. इन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी थी, इसलिए वो सिंगापुर से हांगकांग आई। I obeyed God, leaving my son. I sold all my businesses because God said you are not leaving anything. परमेश्वर ने इनको जब बोला कि तुम सब कुछ छोड़ के हांगकांग आओ, तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार सब कुछ छोड़ के और यहाँ पे हांगकांग आई। And I prepared with nothing, honestly. I'm grateful for my family. They were ever ready to provide for me. ये मतलब कि परमेश्वर का धन्यवाद देती है कि हालांकि जब आई यहाँ पे तो पास कुछ नहीं था, लेकिन इनका परिवार इनके साथ था जो इनका साथ देने को तैयार था। But God still said no. Hold on to me and me alone, not anyone else. परमेश्वर ने बोला नहीं, अपने परिवार वालों को मत पकड़ो, तुम मेरे को पकड़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला है करने के लिए। And I expected. और उन्होंने वो उम्मीद को जगाए रखा। Because He is the promise keeper. क्योंकि वो परमेश्वर जो है जो भी प्रॉमिस करता है, वादा करता है, उसे निभाता है। That is why my son said, the woman who stands today here in front of you, the woman who stands here in front of you, ये जो इसी जो सूरज ने बोला कि जो माँ और जो औरत जो तुम्हारे तो हम लोग के सामने खड़ी है, I am one of the most blessed women in the world. दुनिया में सबसे ज्यादा आशीषित वुमेन औरत है ये। I have God as my father. क्योंकि परमेश्वर इनका पिता है। I have a son who loves God. और इनका बेटा जो है जो परमेश्वर को बहुत प्यार करता है। And I am soon having a daughter who also loves God. इनकी जो बहू होने वाली है वो भी परमेश्वर से बहुत प्यार करती है। So when I was hopeless, तो ध्यान कीजिए जब ये नाउमीदी में थी ये, He has always been my hope. परमेश्वर इनकी उम्मीद बनकर हमेशा रहा है। Please remember, the first coming, our King suffered. ध्यान रहे जो परमेश्वर पहला यीशु मसीह जब आया तो वो उसने बहुत बड़ी सफरिंग अपने ऊपर झेली है। The crown of thorns that was put on his head. जो क्राउन उनको पहनाया गया था, मुकुट जो पहनाया गया था, वो किसका था? कांटों का था। Imagine we prayed for the coming of a Messiah. अब सोचिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि जो मसाया है, किंग राजा व राजा वो आने वाला है। But he decided to come as a servant. लेकिन वो आया किस रूप में? एक सेवा करने के रूप में। He went to the cross. वो क्रॉस तक गया। Took every suffering for us. उसने अपने ऊपर हमारी सारी जो हमारी बुराइयां हैं सब अपने ऊपर ले ली। That is why we're seated here today because of the blessed hope. और इसी वजह से आज हम यहाँ पे हैं कि परमेश्वर ने जो किया उससे हमें उम्मीद मिलती है। So for me, इनके लिए when we talk about Christmas, जब ये बात करते हैं क्रिसमस के बारे में बात करते हैं तो इनके it's लिए not about remembering how he had come. तो ये जरूरी नहीं है कि इनके लिए ये नहीं है कि वो कैसे आया।
But my prayer is to see how he will come again. बल्कि इनको ये उम्मीद है कि जब वो दोबारा आएगा तब Because कैसा होगा। this time he is coming as king. और अब की बार जब आएगा वो राजा बन के आएगा, सेवक बन के नहीं आएगा। And we are the children of the king. और हम उसके बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं? राजा के बच्चे हैं। Who is our hope? कौन है हमारा उम्मीद? किसके ऊपर हमारी उम्मीद है? Say it loudly, he can't hear you. Jesus. Who is our hope? Who is our hope? Amen. Amen. So, I really believe this is a season of change for many of you. ये इनको पूरा यकीन है कि जो सीजन चल रहा है ये हमारे अंदर बदलाव लाने के लिए बहुतों में कहने में बदलाव आएगा। As the skit showed, जो स्किट दिखाया था, things are going to change. The minute you hear God, वो आपके अंदर बदलाव आएगा उसी क्षण से जब आप परमेश्वर की बात सुनेंगे, you obey God. आप उसकी बात पे अमल करेंगे, You prepare what God is asking you. आप तैयारी करेंगे परमेश्वर जो आपसे करने को कह रहा है, And expect the heavens to rain down on your life. और आप उम्मीद कीजिए कि परमेश्वर जो है स्वर्ग के द्वार खोल देगा आपके लिए। Amen. So, bless you, my dear family, and may this truly be a season of hope for all of you. पर ये आपको आशीर्वाद करना चाहते हैं कि जो सीजन है ये उम्मीद से भरा हुआ सीजन आप सबकी जिंदगी में हो। God bless you. Come on, did you enjoy that? Yes. Everyone? Praise God, praise God, praise God. Wow. Thank you so much, sister. Not to love, right? बहुत कुछ है जो हमें सीखना है, बहुत चीजें सीखनी है हमें। Thank you. किस तरीके से मरियम का उदाहरण देके आपने बताया कि क्या हमें करना चाहिए होप में। ये हम सब के लिए सीख है, हर इंसान के लिए सीख है। We need to learn a lesson from all of this. Okay, let's all start. Mind you, the service is not over, so we may continue. We will continue to sit here. We have few things to do. So we will say the Lord's Prayer together. We will say in English and then in Hindi. Our Father, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and glory, forever and ever. Amen. and we will also read 2 Corinthians 13:14. May the grace of the Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit, be with you all. Amen. Now we'll say the same thing in Hindi also. तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। Amen. 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 I'll say a short prayer. If you want to sit down, you can sit down. Lord, we just want to say thank you to you, Lord. Lord, as we prepare our hearts, our mind, our soul, our bodies, Lord, and we enter Advent, Lord, help us to prepare, Lord. परमेश्वर जैसे कि हम क्रिसमस के नज़दीक आ रहे हैं खुदावन, और तेरे आगमन का खुदावन हम जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं खुदावन, तो आ चुका है खुदावन, तो हमारे साथ है। तो खुदावन हमें इस तैयारी में शक्ति दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे। Lord, we have heard today, Lord, the message, Lord, about hope, Lord. Lord, help us to apply it in our lives, Lord, to understand it, Lord, not to just forget about it, but apply it in our lives, Lord. And lead a life, Lord, which is filled with true hope. परमेश्वर आज हमने ये वचन सुना, हमारी जो बहन ने सुनाया, बताया हमें, खुदावन ऐसा करके हम सिर्फ इसको सुने नहीं बल्कि इस पर अमल करें, इसको समझे और अच्छी तरीके से खुदावन इसको अपने अंदर जहन में डालें, ताकि जब हम जैसे करीब आते हैं क्रिसमस खुदावन, तो हम उस तरफ चल सकें। खुदावन जैसे उन्होंने बताया होप,
खुदावन उसी तरीके से खुदावन हमें भी अपनी तैयारी करनी है। इस तैयारी में खुदावन हमें हिम्मत दे, सामर्थ्य ताकत दे खुदावन। Lord, as we just close this time of service and go into the other activities, Lord, we ask you to continue to be with us and bless us, Lord. Lord, जैसे हम इस सर्विस खत्म करने वाले हैं और हम बाकी कार्यक्रम में जाने वाले हैं, अपनी आशीष हम सब पे बनाए रखें। In your name, Lord, we say, Amen, 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 Amen. Okay, so can I ask all of us to come inside, please? Can we come in, please? Everyone? Where's my wife? Ask, where's Jack? Mom, ask mom. You know, I was really worried because I thought we will overshoot and we will go beyond the time, but I think we are making good progress. But there are a few things that we want to do, and normally we do it over Thanksgiving. So come on, everyone, come sit inside. Quickly. Jeff. You know, church, what is a church? Church is built by who? Church is built by who? Builder. Okay, good. No, yes, he's right. But in a church, to build a church, you have to have some very essential things. You have to have pillars, you have to have walls, you have to have a roof. Right? So, in our church also we have, it's not about me, okay, that I'm fine, I'm the pastor. It's not about me. So, अच्छा, you come and speak in Hindi then, huh? Is it on? Off? So what Jay is saying, उसकी आवाज तेज है तो सुनाई देगी. So what I was saying is that church is built of pillars, wall and a ceiling. It has to be there. तो चर्च दीवारों से आपकी खम्भों पिलर्स से या फिर आपकी छत से ही बना हुआ नहीं होगा. Yes, of course, the church needs to have all these, but there's a church inside of us also. सिर्फ यही नहीं, सबके दिलों में भी एक चर्च होता है. If I stand here alone and say I'm the pastor, nobody is here, nobody is helping me, then I will not be able to sustain or do God's work properly. ये अकेले प्रभु का काम नहीं कर पाएंगे जब तक कि सब मिलजुल के उनका साथ न दें. So I just want to acknowledge today, and by grace of God, people who support this church, not me, this church. I want to just acknowledge them. So may I ask Brother Raju, Sister Renu is not here, Sister Joy, and Sister Ranjana to come, please. Brother Raju, Sister Joy. Please come. We just want to acknowledge and bless you. Come on, church. Come stand. Sister Ranjana. A small token. Come on, you can take a photograph. धन्यवाद. Somebody take a photo.
तो ये तो 4 खंबे हो गए, 4 pillars. Thank you. Sister Renu is not here, so we'll give her when she's there. And then we come to the roof. अब हम आते हैं छत पे. ये तो सिर्फ 4 खंबे हो गए. Now we'll have to see the names. Can you come, Vijay? Pastor Joseph. Okay. Pastor Joseph, Ansh. Sorry guys, this I had to do it. Pastor Joseph. Good. Pastor Joseph. He leads our worship, so thank you, Pastor Joseph. And give it to Ansh, yeah. And for the Henry's Biggie Church, Sister Alka. Come, Sister Alka. So Sister Renu is already not there, but she's part of, and Ranjana already got the gift, so thank you so much. Now we have, you have the walls, okay? You have the roof now. If the wall is without a window, how will it look? अगर ये दीवारें बिना खिड़कियों के हो तो वो कैसे लगेंगी? हम कुछ नहीं करना. So we have 2 windows. 2 windows. हमारी 2 खिड़कियां हैं. Shaina is claimed as a bright light into our church to serve the children's ministry. And also Jaya, she always stands and comes here to interpret whenever she's there. Thank you. Please take a photo of them. Thank you. And now, give it to me. Now you can start taking them on each. Thank you. And you can start saying, after that we have the walls. The walls is not 4 walls only. To create walls we need a lot of effort. So I just want to appreciate the people who put in a lot of effort. चाहे वो सफाई करना हो, चेयर्स लगाना हो, खाने में सपोर्ट करना हो, प्रेयर करना हो, उन सब और या कई चीज़ें हैं जिसमें वो हमारे चर्च का साथ देते हैं. They always help us in the church in various activities. So just want to acknowledge them. Sister Sunita. Smita. Sister Alka. दूसरी हो गई. हल्का फूटा नहीं. सब आने तो सारे. ताली बजाओ. साइली. लक्ष्मी पटेल.
ये हमारे बहुत बड़े पिलर हैं। शुरू से लेके हम घर जाने तक हमारे साथ होते हैं। और मीना बिना गवाही की कोई हमेशा आके गवाही देती हैं और हमेशा लोगों को लेके आती हैं। सब लोग ये जो है गवाही के बिना कलिशा अधूरी लगती है। और ये और हमारी हाल का गायकवाड़ तीनों मिलके सारा यहाँ का देखते हैं। फिर ये हल्का और लक्ष्मी यहाँ से लेके पूरा किचन तक सारा देखते हैं। तो कलिशा मिलके मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ सिर्फ इतना ही, मगर सारा सब कुछ ये लोग करते हैं। इस वजह से मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ, इतनी तैयारी कर पाती हूँ। अगर ये लोग नहीं है तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, है ना? तो सबसे ज्यादा इनको परमेश्वर आशीषित करेगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Brother Kamal. Thank you so much. Thank you, Pastor. The change has inspired others. Thank you. Sister Shilpa. Divya. Sister Divya. Harsha. Divya. तालियां बजाओ कि थक गए क्या? खाना गर्म हो रहा है अभी। Deepa. Sagar. Sagar always is ready to bring Prakash. So thank you so much, Sagar. And last but not the least, Prakash. Okay, better, right? Wait. Clicking the picture, where is the photographer? उधर ही लेके जाएंगे। आज फोटो लेना है। Okay. Good. Saint. Okay. Don't hurry. Okay. 1, 2, 3. Got it. Thank you.